Disha, just looking at your young career so far, when we look at you, you're this divine beauty, and then some of the roles which you've done, they might kind of border a bit on femme fatale. So, is this something which, what attracts you to the, for a beauty like you to, what attracts you to these kind of roles? It's for me or it's for you? No, it's for you. It's for you. You're the femme fatale. Oh, it's for Tara. Oh, for Disha. Oh, we thought it's for Disha. Sorry. तो सेम आंसर तुम कॉपी पेस्ट करो चलो हम दिशा को सिखा रहे थे ना वही तुम चलो सर आप डिसाइड कर लो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे विलेन वर्सेस विलेन फीमेल वाला आएगा ना आप ये सवाल फिर से पूछ लेना yeah to these roles So to be honest I mean with because you, of I'm assuming because of Tadap and now yeah, this no, I think it's just so much fun. Sometimes it's good to be bad, sir, and I think it's nice to have the opportunity to do that. I'm very new to this industry, but I think it's more exciting and fun to do something unexpected than your run-of-the-mill heroine roles, which we've seen a dime a dozen in the last many decades of this industry. So I think since we're changing, the industry is changing so rapidly. I think it's just more exciting for us as the young ones to take the baton forward and just do something different with our skill and our talent and make our voice heard. I think it's about time. Hi, Rashida here from PBM in the center. So my question is to Tara and Disha. Here. Don't you feel that actresses are finally getting very meaty parts, as Arjun said, that Equivalent Returns is not about two men fighting, it's also about the two ladies and why they are the villains, the four of them. So, firstly, what do you think took so long for finally seeing actresses up there doing the action, doing meaty roles, and how much did the role excite you personally? Well, I think once the perception of the audiences changes, the industry will change. It's all about people coming and watching your films, and I feel like once audiences accept us as the powerful ones, the strong ones, it'll automatically everything will just fall into place. And I think I am somewhere. I feel like now spending so much time with Mohit sir that I am somewhere twisted in my head, and and I feel like that sort of thing that I had in my head came into life through this character. Fantastic. Tara? Ma'am, I think it's got a great deal to do with having a conversation about something that perhaps makes us uncomfortable as a society or as a people. And I think over the last few years, women have had a voice and had their voices heard. And I think the fact that we can sit here today as a group of people in a room and just have this conversation, it just makes it more interesting and more exciting for us. And the fact that we can have that conversation makes it more possible to have these roles. My next film, Apurva, that I just announced very recently, is speaking on this very subject about powerful, strong women and having their voice heard. So I think for sure there are more scripts for young actors and young women today. And I think it's great. It's about time. हेलो who's speaking hello oh hi अर्जुन सर मेरा सवाल आपके लिए है जी क्योंकि आप बहुत प्यारे इंसान हैं thank you तो आपने अपने 10 साल के कैरियर में अपना हर कैरेक्टर इतनी शिद्दत से प्ले किया है आई लव्ड इट मेरा सवाल प्यार पे है सर कहते हैं कि प्यार में किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस फिल्म में भी ऐसा ही प्यार दिखाया गया है तो सर इज़ इट पॉसिबल रियल लाइफ में भी किसी के साथ होने के लिए उतना ही शिद्दत से कोई हद से गुजर सकता है ये पॉसिबल है रियल लाइफ के लिए भी मुझे तो तेरे से हो गया कुछ सालों से तारीफ की आदत नहीं थी तूने जिस तरह की थैंक यू अब लगता है कि दुनिया जो चाहे कहे मैं तो शिद्दत से ही करते रहूंगा जो क्या बात है क्या बात है अब मैं सच में पिघल गया और इसमें तारा की सिंगिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था सर एक्चुअल में आई लव यू सो मच आई लव यू टू व्हाट्स योर नेम रेखा सुथार सॉरी रेखा सुथार फ्रॉम रेडियो अड्डा
रेखा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस काइंड वर्ड्स. जो आपने कहा वो एक एक्टर यही सुनना चाहता है 10 साल के करियर में, जो आपने कहा दैट आई वर्कड हार्ड. सो थैंक यू फॉर दैट एंड आई रियली लव यू फॉर दैट. आई लव यू अ लॉट. you so much. टू आंसर योर क्वेश्चन, you know, the thing is, it's very difficult to say कि आप शिद्दत से प्यार कर सकते हो या नहीं, बिकॉज जब आप प्यार में होते हो, जब आप किसी से प्यार करते हो, आप पूरी शिद्दत से ही कोशिश करते हो. कई बार उसमें कुछ रह जाता है या कुछ वर्कआउट नहीं होता. इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरे ईमानदारी से या शिद्दत से नहीं किया. निजी जिंदगी में सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होते हैं, या आप जो पर्दे पे देखते हैं वो एक कहानी है जिसमें दी एंड आता है. हम जब किसी से प्यार करते हैं हमें निभाना भी पड़ता है, और वो शिद्दत से निभाना भी जरूरी है. प्यार करना आसान है, उसे निभाना, the circumstances are always going to change, evolve, and in today's society even more so, because you need to allow your partner to feel comfortable and confident and allow them to be. So I would like to say यार, शिद्दत से प्यार करना मतलब एक दूसरे को इज्जत देने के साथ साथ you should be able to enjoy the bad along with the good, and I think that is the most important part in society today, that sometimes we are not able to go through with love. I think that is the most amazing thing. If you can fall in love and go through the bad days also, that is the true shiddat in mohabbat, if you call it. I'm sorry to butt in. I'm sorry, I don't do this usually. I love you के बाद जो बाकी बोला समझ में आया कुछ? कुछ नहीं. She's like blank. I love you हो गया. जी. Next, we'll take 2 more questions, yeah? जी. I think ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ अभी सडनली. रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पे आग लगा के रखी है, आपके फ्रेंड्स अच्छे खासे, और काफ़ी लोग उन्हें इसके लिए ट्रोल भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग तारीफ भी कर रहे हैं. आपका क्या टेक है, क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? आप बताइए. मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, बिकॉज द थिंग इज यू शुड बी अलाउड टू बी योरसेल्फ. ही इज दैट वे. मुझे नहीं लगता रणवीर सिंह कभी किसी चीज़ को करते हैं विदाउट बीइंग हिमसेल्फ. कोई दिखावा नहीं है उनमें. आप अभी उन्हें 10, 11, 12 साल से देखते हैं एज मीडिया. व्हेन ही कम्स इन, देयर इज वार्मथ, देयर इज एंजॉयमेंट, देयर इज एनर्जी. वो उनकी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन है. उनकी मर्जी है, उनका सोशल मीडिया. उन्हें सही लगता है इस वक्त टू बी इन दैट वे दैट ही वांट्स टू बी. ही वांट्स टू सेलिब्रेट बीइंग कंफर्टेबल इन हिज ओन स्किन, एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट. हैविंग एन ओपिनियन इज फेयर. आई थिंक ट्रोल्स को तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए जिंदगी में, बिकॉज कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम है कहना. आपको जो ठीक लगता है आपको करना चाहिए. एंड फुल क्रेडिट टू द बॉय इफ ही इज वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट ही इज डूइंग. इफ ही इज नॉट बीइंग फोर्स्ड इनटू इट एंड इट्स नॉट बीइंग डन इन अ रॉन्ग वे और अ क्रूड वे, यू शुड रिस्पेक्ट दैट. ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू एंड बी हैप्पी, एंड ही इज मेकिंग पीपल हैप्पी बाय डूइंग दैट आल्सो. Alright, one. अर्जुन सर. अर्जुन सर. जी सर. मैं शिवम मिश्रा सामना से. जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इंडस्ट्री में लगातार रिटर्न कोई भी फिल्म का सीक्वल बनाने का चलन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या अच्छे कंटेंट का कमी है या प्रोडक्शन हाउस का एक लिमिटेड टीम के ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है? सर देखिए, बहुत सिंपल सा जवाब है इसका. जब हम हॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान में इतनी चल रही है, वो सब रिटर्न ही आ रही हैं. अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं. डॉक्टर स्ट्रेंज अभी चली है, थॉर अभी चली है. मतलब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे लेकिन एम्बियंस नहीं है, कैमरे में नहीं आ रही. हाँ, एक सेकंड. ठीक है, तो जवाब देता हूं. नीचे संभालो भाई, नीचे संभालो. Genuinely, sir, I think it's a worldwide thing. You have to understand the audience today wants to see films that they have enjoyed. You look at Tom Cruise today. He's come back after so many years and is doing Top Gun. Yeah, so you have Fast and the Furious. आप Top Gun भी देख लीजिए. इतने सालों बाद वो फ्रेंचाइज फिर से शुरुआत हुई है और उसमें टॉम क्रूज ही हिस्सा है. तो मैं ये मानता हूँ, अगर आप एक फिल्म भी देखें, डायरेक्टर अपनी कहानी को आगे ले जाता है. अगर कोई स्टूडियो है या प्रोडक्शन है, अगर कहानी में दम है, लोगों को पसंद आई है और हम अच्छे तरीके से पेश करते हैं, तो बेशक हमें करना चाहिए. बिकॉज दैट इज व्हाट एंटरटेनमेंट इज. इफ यू आर इमोशनली अटैच्ड टू अ कैरेक्टर एंड वी कैन एक्चुअली मेक यू हैव मोर फन कमिंग टू द थिएटर. दैट हैज नथिंग टू डू विद हमारे पास कंटेंट नहीं है. ये जो पहला पार्ट बना था वो तो कंटेंट था ना सर. पहला चला वो तो अच्छा कंटेंट था, तो वो अच्छे कंटेंट को आगे बढ़ाने का तो हमारा हक है, क्योंकि ऑडियंस का डिमांड है. तो इट्स अ वेरी गिव एंड टेक सिचुएशन. अगर ऑडियंस कंज्यूम करती है और एंजॉय करती है, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो थिएट्रिकल हो. I think if you see Bhool Bhulaiya after so many years, there's a second part or a continuation that's come and it's done well. So there is no harm in considering it. I think if you have to respect the audience. If we do original films, they do well, don't do well. The ones that do well, if they have a chance to have a sequel, then I think we have every right to entertain people. Look at Rohit Shetty sir, उन्होंने गोलमाल की पूरी फ्रेंचाइज बनाई और उसकी वजह से कितने लोग एंटरटेन हुए. तो ऐसा नहीं. आई थिंक सिंघम देखेंगे, पार्ट 2 बनी, उसके बाद सूर्यवंशी में आया किरदार. सो द वर्ल्ड इज अ प्लेस टुडे वेयर यू कैन एक्चुअली एंजॉय
characters entering each other's spaces, universes, and Hollywood is a big starting point of that if you look at it. So I think if you have to ask the question, it is audience driven. Audience enjoy that. Hindustan ki audience bhi Avengers ko utna enjoy karti because all of them are coming together. So those are all franchises taken ahead. So yeah, I think that's a very long answer. But Hi. Yeah, one last question we'll take. Ji. Hi, Preeti here from First India. Okay. एक विलन रिटर्न जिस तरीके से रिस्पांस पा रहा है, बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है सॉन्ग्स को लेकर या फिर ट्रेलर को लेकर बोला जाए, जानना चाहूंगी बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या कुछ रहा है अभी तक का प्रमोशन से रिलेटेड? मेरा गला दुख रहा है, मैम तीनों से पूछो। दिशा, moment while promoting the film, if you've had a moment, nicest fan moment. So I have a lot of these young fans, and I do love them a lot. And wherever I go, I do see them, and yeah, I'm just very glad. Like I get to meet them in person now, finally, because I'm getting out of my house a little more, and yeah, I just love them a lot. Tara? Tara, for you? I think हम सब के लिए we've been very lucky. हम बहुत सारे city tours पे गए हैं and I think हमारे सारे portraits बनाए गए हैं by so many fans जो sketch करके हमें देते हैं on stage. So that's been really nice कि हम we've been to Ahmedabad, Nagpur, Pune, we're going to Delhi, so many other places as well. And I think जब वो time निकाल के portraits बनाते हैं हमारे लिए या notes लिखते हैं, that's very very special. John sir? मैं तो प्रमोट करता ही नहीं हूँ. मुश्किल से मतलब आई कैन स्टैंड विद डिफिकल्टी एंड आई टॉक. तो और मेरे हिसाब से अगर फिल्म अच्छी है चलेगी, अगर अच्छी नहीं है नहीं चलेगी. बट या आई थिंक अगर अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन जानना चाहूंगी कि अभी तक बिगेस्ट फैन मोमेंट क्या कुछ रहा है आपके लिए? मैं कहाँ गया हूँ प्रमोशन पे. ये ओके इन लाइफ आई गेस फॉर एवरीबॉडी अबाउट टैटूज जो यू नो समवन डज समथिंग लाइक दैट कैन नॉट बी टेकन ऑफ. That means a lot. लेकिन that's a very self-loving thing. So I call them my audience and not my fans. So I think it's a trap we actors fall into. We get consumed by this fan business, and it's a very dangerous trap. I think so. मैं personally मानता हूँ कि at least I'm a person who thinks you must have your alone time and you must know what your worth is, rather than someone telling you what your worth is. You get what I'm trying to say? Yeah. कोई अच्छा बोलेगा, you'll feel very good. कोई बुरा बोलेगा, you'll feel very bad. Right. Don't let that affect you. You know? And the digital media is filled with all this, you know? Thank you so much. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. You guys have been wonderful. और वो recliner में जो पड़े हुए हैं 4 लोग, तुम्हें देख रहा हूँ मैं बहुत देर से. 29 जुलाई जाना है, ऐसे enjoy करना है film. It's time for a quick photo op, ladies and gentlemen. Wow. You've got something.
Thank you so much, ladies and gentlemen. 29 July, yes. Thank you so much, ladies and gentlemen. दिपेश मेरा छोटा भाई था और 2007 से अब तक नॉन स्टॉप हमारे साथ उसने काम किया है। हम लोग काम इतना करते हैं कि हम लोग आपस में एक फैमिली हो जाती है। तो इट इज़ द सेम एज लूजिंग अ फैमिली मेम्बर, वेरी पेनफुल, वेरी ट्रैजिक। ये जो कुछ भी हुआ है ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये ट्रेजेडी में आता है। उसका बहुत छोटा बच्चा है, उसकी बहुत यंग वाइफ है और बहुत इट्स टू सैड। Would you like to say what happened exactly today early morning? You see, it's difficult to say। वो क्रिकेट खेल रहा था और उसके बाद उसने आई थिंक एक ओवर डाला और फिर वो कोलैप्स हो गया। तो यही हुआ है एंड इट इज़ It's very unpredictable. Yesterday night he uploaded a reels and now today after 24 hours. It's very sad to see, sir. Of course, it's very sad. It is very sad for his wife. It is very sad for that little child. And हमारे लिए तो खैर एक irreversible loss है। Yes. और दिपेश हमारी सेट की रौनक था, हमारे सेट की जान था और सबका चाहिए था। उसको प्यार से मैं दीपू बोलता था। काफ़ी दुखद घटना है, काफ़ी बहुत दिन सैड है। मैं पर्सनली काफ़ी सैड हूँ। तो आप क्या कहें? मतलब एक्चुअली मुझे बिल्कुल सुबह 10 बजे पता लगा था और हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है। और हमने जब पता लगा मैसेज है उसमें लिखा था दीपेश मलखान हैज़ बीन पास्ड अवे। तो मुझे लगा टीका मलखान का कोई मीम है जो अभी पूरा आने वाला बाकी है। तो मैंने वेट करता था, उसका कुछ नहीं आया। तो पूरा पढ़ा मैंने, तो आई एम टोटली शॉक्ड। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया, आपने हमारे क्रिएटिव हैं विजय भाई, उनको मैंने फ़ोन किया, उनका हाँ ऐसा सच है। तो आधे घंटे तक मतलब मुझे विश्वास नहीं, मेरे हाथ पैर नम हो गए थे। हम चाय पीने वाले थे, हम सब छोड़ दिया। मैं भी अपने घर पे था फैमिली के साथ। फिर उसके बाद हम आए सब यहाँ पे, तो मोस्टली हम 11 बजे पहुँच गए थे वहाँ से। फिर अब फाइनली सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। बट लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि इतना फिट, एकदम जिम करने वाला, योगा करने वाला, क्रिकेट खेलते हुए जो उनके साथ हुआ है, तो विश्वास नहीं हो रहा कि पता नहीं यार कब किसके साथ क्या हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उनका बच्चा अभी सिर्फ बस 18 महीने का और शादी को भी 3 साल ही हुए हैं। तो
बहुत शॉकिंग है। देखो हम लोग का क्या, हम लोग तो 10 दिन 4 दिन 15 दिन महीने में हम लोग तो भूल जाएंगे, बैक टू वर्क हो जाएंगे, सब अपने अपने जॉब पे वापस चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात उनकी वाइफ, उनके बच्चे के लिए, जो उनको पूरी ज़िंदगी भर सफ़र करना है, कैसे क्या है, क्या चीज़ें हैं या नहीं है, तो मुझे बहुत दुख है उनके लिए, और भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। आपकी कुछ बातचीत हुई इनकी वाइफ से, आपने पूछा क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली वो बिल्कुल एकदम शॉक है, वो एकदम मतलब उनके आंसू सूख चुके हैं, वो बात करने लायक ही नहीं, वो बिल्कुल एकदम ऐसे बैठी एकदम फ्रिज की तरह, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, क्या बोलेंगे। इतना बड़ा हो गया उनके साथ, बच्चे को देख देख कर बच्चा रो रहा है, उसको देख देख के हमें आंसू आ रहे हैं यार, इतना छोटा सा बच्चा जिसको कुछ पता भी नहीं है, और उनकी जो सास है बेचारी वो रोई जा रही है, तो उनको बस संभाल ही रहे हैं। हमने बोला उनको कि आप घर में बड़ी हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आप उन्हें संभालेंगी तो आपको संभालना ही पड़ेगा, कि वो आपकी बेटी है और वो बच्चा है, तो आपको संभालना है। तो वो ये बेचारे सब अपने अपने घर चले गए हैं। मुझे तो बड़ा दुख इस बात का है कि वो अब अपने घर जाएंगे वापस से, घर बिल्कुल खाली, तो कैसे मतलब कैसे 2 BHK 3 BHK जो भी उनका घर है कैसे सर्वाइव करेंगे उस घर में। हम तो सब चले जाएंगे अपने अपने घर, तो वो बिल्कुल खाली एकदम से सन्नाटा, सुबह 10 बजे से जो भी टाइम हो रहा है सब मतलब से चले गए हैं वो। बहुत शौक, बहुत धन्यवाद। प्लीज़ ध्यान रखिए सब अपना, और कुछ भी आपको लग रहा है, कुछ भी चीज़ें हैं तो प्लीज़ चेकअप कराइए और पूरा ध्यान रखिए। अगर हमें भी कुछ ऐसा लगता है तो मैं प्रॉपर चेकअप कराता हूँ, और मुझे तो वैसा लगा मैं भी एक बार थोड़ा सा चेकअप कराऊंगा। कुछ भी चीज़ें, भगवान करे सबके साथ अच्छा हो, कुछ बुरा ना हो, सबका अच्छा काम चलता रहे, सब खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।